السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار آیت کریمہ کا وظیفہ بھی لازمی طور پر کر لینا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ درود شریف کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ کے کیا کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اور احادیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے، جو آیت کریمہ ہے یعنی کہ وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سکھلائی تھی، یہ یاد کرائی اللہ تبارک و تعالی نے، ٹھیک ویسے ہی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا یاد کرائی تھی۔ ان کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے آپ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر بتلاؤں گا کہ جس شخص نے آیت کریمہ کا اہتمام کیا ہے ان کے واقعات اکابرین میں سے کہ کیسے کیسی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی ہے اور انہیں کیا کیا نصیب ہوا ہے، کس وقت میں انہوں نے اس آیت کریمہ کا اہتمام کیا ہے، تو وہ وقت بھی بتلاؤں گا اور طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ بنے رہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ آیت کہہ رہی ہے، قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ ہمارا ذکر نہیں کرتے، یعنی کہ یہ دعا نہیں پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ دعا نہیں پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ پتہ چلا کہ مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی ہے ان کو اس دعا کی وجہ سے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا انہیں سکھلائی تھی۔ اور آگے دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو ٹینشن، پریشانی اور فکر سے، ہر طرح کی دشواری سے نجات آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آیت کریمہ کے بارے میں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو ضرور جو ہے نجات ملا کرتی ہے، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی ٹینشن اور ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی بیماری سے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذُنُّون یعنی کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کسی نے بھی اس دعا کے ذریعے کوئی حاجت اللہ سے مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس حاجت کو ضرور پورا کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کی دعا ضرور قبول کی ہے۔ یہ حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ نہایت طاقتور ہے، آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آیت کریمہ کو کس طرح پڑھا جائے، میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ایک مختصر وضاحت کے ساتھ۔ دیکھیے آیت کریمہ کیوں پڑھنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ کے 3 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا انت، اور دوسرا ہے سبحانک، اور تیسرا ہے انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اس کے اندر توحید ہے کہ اے اللہ آپ ہی ہیں ہمارے معبود، اے اللہ آپ ہی ہیں ہمارے خدا، اے اللہ آپ ہی ہیں پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے، عزت اور ذلت دینے والے۔ اس سے یہ اعتراف ہوتا لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے۔
सुबहानका, आपकी ज़ात बहुत बुलंद है। इस जुमले के अंदर तारीफ बयान की गई है, अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ को बयान किया गया है। अल्लाह आप बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत वाले, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसमें जो है एतराफ़ किया गया है अपने जुर्म का, अपनी कोताही का, अपनी कमी का, अपनी खामी का। ये अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैं जालिमों में से हूँ, मैं कोताही करने वालों में से हूँ, मैं नाफरमान, आप बड़ी शान वाले हैं। तो अकाबिरीन फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, तौहीद के बारे में कामिल यकीन और पुख्ता इरादा और अकीदा मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह ही है, एक ही अल्लाह है जो पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है, उसी के हुक्म से सारा निज़ाम दुनिया का चला करता है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ करे, औसाफ बयान करे। दूसरी चीज़ अपना जुर्म कबूल करे, अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं परेशान हूँ। और ये तीनों चीज़ें इस आयत करीमा में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए इस आयत करीमा को पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक शख्स आया, मैं वाक़या बता रहा हूँ, और उस शख्स ने ये कहा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, घिरा हुआ हूँ टेंशनों में, कोई ऐसी दुआ बताएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन सुन ले और मेरी तकलीफ दूर कर दे, परेशानियां पीछा छोड़। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ऐसी तस्बीह है जो अंधेरे से निकालती है। ये हजरत हसन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया। उस शख्स ने यह दुआ कसरत से पढ़ना शुरू कर दी, कसरत से, यानी ज्यादा से ज्यादा इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया। कुछ ही दिन गुजरे थे, कुछ दिन के बाद वापस आया और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से उस शख्स ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, जो रास्ता बंद था वो खुल गया, जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, जो दुख थे वो खत्म हो गए। तो देखिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने आयत करीमा को पढ़ने के बारे में बताया कि इसको पढ़ो। एक और वाक़या सुनो। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स भी किसी रंज या मुश्किल में हो और ये दुआ इखलास से पढ़े तो कसम है उस जात की जिसने यूनुस को मछली के पेट से निजात दी, वो शख्स भी जरूर निजात पा लेगा। अब देखिए, अब बात रह जाती है कि इस आयत करीमा को पढ़ना कैसे है। मैं तरीका बता रहा हूं और वक्त बता रहा हूं, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। देखिए, इसका तरीका यह है कि सबसे पहले वुजू करें, यानी बावुजू होकर किसी पाक जगह बैठे, कमरे की तरफ रुख करके। ये मुस्तहब तरीका है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। वैसे तो आप चलते फिरते बगैर वुजू के भी इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। बेहतर है कि वुजू की हालत में पढ़ा जाए, क्योंकि कुरान करीम की ये आयत है, तो एहतराम जरूर रखना चाहिए। वैसे पढ़ सकते हैं बगैर वुजू के भी, चलते फिरते ही पढ़ सकते हैं। मुस्तहब तरीका जो जल्दी असरअंदाज हो वो ये है कि वुजू करके किसी पाक जगह बैठे, क़िबले की तरफ रुख करें और दिल को साफ करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, यानी अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें। और दूसरे नंबर पे दरूद शरीफ पढ़ें, जो मैंने कहा ना दरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना, यानी वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। ये पढ़ने के बाद 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं दरूद शरीफ, और 11 मरतबा भी आप इसको दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर दरूद शरीफ पढ़ना है। और तीसरा नंबर 3, अब जो है ये आयत करीमा आपको पढ़नी है। आयत करीमा कितनी मरतबा पढ़नी है, तो इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए, आप वक्त के लिहाज से 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह 313 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह 100 मरतबा भी इसको पढ़ने का एहतमाम कर सकते हैं। बाकी आप अपने वक्त के लिहाज से तरतीब बना लें। बेस्ट है कि कम से कम 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा इसको पढ़ें। 100 मरतबा डेली अगर एहतमाम करना है तो, और अगर ज्यादा दिन का एहतमाम करना है, 40 दिन का
या 21 दिन का, और अगर कम दिन का करना है तो 1100 मरतबा कम अज़ कम इसको या 1000 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। ठीक है ना, यह हो गया आपका तीसरा काम। अब चौथा काम जो करना है वो ये है कि फिर आखिर में आयत करीमा पढ़ के फिर आखिर में आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुकम्मल आजिज़ी और इखलास के साथ दुआ मांगनी है और अपनी उस हाजत को दिल में रखना है। ये वजीफा पढ़ते वक्त कब पढ़ें और किस तरह से पढ़ें ये भी आप सुन लें। वक्त की क्या तफसील है, कहते हैं कि तहज्जुद सबसे अफजल वक्त है। अगर आप पढ़ने का एहतमाम करें, तहज्जुद में उठ सकते हैं आसानी से, तो तहज्जुद का वक्त पढ़ें, चंद रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद तन्हाई में सजदे और आंसुओं के साथ पढ़ें, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सामने रोएं। नंबर 2, दूसरा वक्त है फजर के बाद। दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करें। फजर की नमाज से फारिग हो गए तो आप ये वक्त कर सकते हैं अगर तहज्जुद में ना कर सकें। तीसरा वक्त है मगरिब के बाद। दिन भर की परेशानियों का इलाज इंशाअल्लाह इससे हो जाएगा। इसी तरह रोजाना अगर मुस्तकिल 7 दिन या 40 दिन तक करें तो ये बहुत ज्यादा असर होता है। तो मैंने आपकी खिदमत में बतलाया था ना कि आप 7 दिन भी पढ़ सकते हैं, 21 दिन भी पढ़ सकते हैं, 40 दिन भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी है, दरूद शरीफ के एहतमाम के साथ साथ आप जानते हैं दरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है, इसलिए इस आयत करीमा का एहतमाम भी कभी कभार करना चाहिए अपनी दुआओं के अंदर। रब्बे ज़ुल जलाल अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।